ਅਸੀਂ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ नहीं ਕਹਿੰਦੇ, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज विच लिखिया है ते सारे भगतां ने सियाणे पुरुषां ने यही समझाया है। कहंदे 84 लाख जूनी विच फिरदियां फिरदियां परमात्मा ने सानू मनुख बनाता। हुण इस गल दी गवाही कबीर महाराज भी भरदे ने। कहंदे पूर्व जन्म हम तुमरे सेवक अब तो मिटिया ना जाई। ਇਹਦਾ मतलब ਪਹਿਲਾਂ भी ਕਹਿੰਦੇ मैं जन्म ਧਾਰਿਆ, ਹੁਣ भी परमात्मा तेरी भगती बिना रहा नहीं जाता। ऐसे घर हम बहुत वसाए। ਆਪਾਂ भी देखो संसार विच आए हाँ, कोई जमीनां बनाउंदा, कोई घर बनाउंदा है, कोई पैसा जोड़दा, कोई मोटर गड्डियां बनाउंदा है। परमात्मा ने किरपा कीती, आपां भी बहुत घर वसाए ते ये भी नहीं पता किन्नी क वारी मरे आ ते किन्नी क वारी जम्मे आ गुरमुखो। कोई दुखी है, कोई सुखी है, ये भी अगले पिछले कर्मां दा ही फल है। ते बड़ी किरपा रब ने ये कीती, हर बंदे विच कोई ना कोई गुण पाता गुरमुख। वो संसार नूं सोहना बनाउण वास्ते ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਸਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਚਾਹੁੰਦੀ ਵੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਣ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਵੇਖੇ, ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਫਸ ਗਏ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਿਆਂ 'ਚ, ਕੋਈ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ 'ਚ, ਕੋਈ ਚੋਰਾਂ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਨ 'ਚ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਤੇ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾੜੇ ਆ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਉਹ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਫਸ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਗਲਾ ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਭੇਜੀ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਹੁਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕੰਮ, ਇਕੱਲੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਰੱਬ ਨੇ ਖੇਡ ਬਣਾਤੀ, ਚੰਗੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਭੇਜੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਵੀ ਭੇਜੇ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਮਾਲ ਦੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹ ਆਉਣਾ ਗੁਰਮੁਖ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਸਾਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਹੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਦਰ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ। ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਨੇ ਸਵਾਸ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਵਾਸ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਕੋਠੀ ਪਾਈ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਵੇਚ ਲਓ, ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਜੋੜਿਆ ਉਹ ਵੀ ਵੇਚ ਲਓ। ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲੈ ਲਓ, ਕੁਛ ਸਵਾਸ ਪਾ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਮਰੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਹਾਂ, ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਨਕਲੀ ਸਾਹ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਈ। ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਧੜਕਦਾ, ਬਨੌਟੀ, ਪਰ ਮਰੇ ਹੋਏ 'ਚ ਸਾਹ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਗੁਰਮੁਖ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ 24,000 ਸਵਾਸ ਰੋਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਵੀ ਸਵਾਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿੱਲ ਦੇ ਦਈਏ। ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਖਰਚਾ, ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਰੱਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੇ। ਦੂਜੀ ਲੋੜ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਫਰੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜ ਸੀ ਭੋਜਨ ਦੀ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਫਰੀ ਗੁਰਮੁਖੋ।
ਇਹਦਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਸੋਚ ਤਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਆਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਭੋਜਨ ਦੀ ਤੜਫ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਖੋਜ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜੇ ਰੱਬ ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਐ ਲੰਗਰ ਚਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਦਰਿਆ ਚਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਰਿਆ ਚੱਲਦੇ ਐ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਲਿਟੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਾਇਲਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਮਿਸਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਾਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਸੇ ਦਾ। ਇਹ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖਦੇ ਆ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕਿੰਨਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਰੋਟੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖ ਪਾਤੀ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਰੋਟੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਜੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕਹੀਦਾ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਚੀਕ ਚੀਕ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਗ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਰੋਗ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਗ ਲੱਗ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਭੋਜਨ ਤੇ ਭਜਨ ਦੋਨੇ ਖੁਰਾਕਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਭਜਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਬਲਵਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਤ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਵੈਰਾਗੀ, ਕੋਈ ਤਿਆਗੀ। ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਿੰਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਤਤਵੇਤਾ ਮਹਾਤਮਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਾਹਦੀ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤੂੰ ਹੈ ਕੀ, ਇਹ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਸਲ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੀ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਉਂ ਭੇਜਿਆ? 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਭੇਜਿਆ? ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਬਣਾਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਬਾਕੀ ਮਾਲਕ ਸਵਾਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਲੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ, ਸਰੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਲੰਗਰ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਨਸਾਨ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਦਾ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਨਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਵੀ ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀ ਤੇ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਇਹ ਭੁੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਾ ਮਨਾਇਓ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੀ ਅੰਸ਼ਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਲਾਂਭੇ ਮਿਲਦੇ ਹੈ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੁਰਮੁਖੋ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ,
फिर तां तेरी पूजा होऊगी। आखो सतनाम। गुरबाणी विच लिखिया ना, 100 उलामे दिन है के राती मिलन सहंस, सिफत सलाहन छड्ड कै करंगी लगा हंस। कई वारी तां आपां दूजे अर्थ करदे आ दुनियावी भी, जे हंस है वो हीरे मोती चुगण दा काम हुंदा ओहदा, ਉਹ हड्डा रोड़ी च बह जे फिर ਉਹਨੂੰ कोई चंगा नहीं समझदा। पर जे अपने ते लाइए, परमात्मा ने आपां नूं भी हंस दा ही दर्जा दिता है। किसी चंगे महात्मा की उदाहरण देनी होवे, कहने तां हंस है जी, बस पवित्र मन्निया जाता है। पर वो तां जे रब दे नाम नाल जुड़े है, भजन बंदगी सेवा नाल जुड़े होए तां थोड़े रह गए, बहुते तां गुरमुखो शरीर रूपी करंगा नूं ही चूंडदे आ। आखो सतनाम। शरीरां नाल ही जुड़े होए आ। ये शरीर इत्थे ही पैदा होया है, इन्हें इत्थे ही खत्म होना है। ख्याल रखियो इस विषय का जो चलदा है। कुछ वो है जिहड़ा सानू नहीं दिखदा, कुछ वो है जिहड़ा सानू दिखदा है। जो नहीं दिखदा वो बहुत कुछ आपां लैके आए हैं ते लैके भी जावांगे, ते जिहड़ा दिखदा है ये लैके ना तां आए सी ते ना ही जाण वेले नाल जाना है। आखो सतनाम। हुण सवास परमेश्वर ने किन्ने दिते, किते दिखदा भी साह आ जा रहा साडा, दिखदा नहीं ना है। कर्म ने साडे, गुण ने साडे, ये दिखदे थोड़ी है। लो मैं हुण कीर्तन कर रहा, महाराज की किरपा नाल कीर्तन की सेवा कर रहे हैं। कोई तुहाडे विच मिस्त्री बैठा होना है जिहड़ा घर बनाउंदा है, कोई चंगा दर्जी बैठा होना है। रब ना करे किसी बंदे की मौत हो जे, डॉक्टर कोले लै जाओ भी ये बहुत चंगा दर्जी सी, कपड़े बड़े सोहणे सिउंदा सी, इहदे च वो गुण कित्थे आ, सानू कढ के दिओ। कोई डॉक्टर कढ सकदा गुरमुखो? साडे गुणां नूं विचों नहीं कढिया जा सकदा, ते कढे औगण भी नहीं जा सकदे। आखो सतनाम। पर जिहड़े चंगे माड़े कर्म करदे आ, इन्हां नाल सानू दुनिया जाणदी है। चंगे काम करांगे सत्कार मिल जूगा, माड़े काम करांगे फिटकार मिल जूगा। तेरे अंदर जिहड़ा गुण है ये नहीं पता वो कित्थे टिकिया बैठा है। ना कोई डॉक्टर, ना कोई विग्यानी दिमाग चों कढ सकदा है, ना दिल चों कढ सकदा है। जीव आत्मा नूं फड़ना तां दूर दी गल है गुरमुखो। परमात्मा ने किरपा कीती, गुण हरेक नूं दिते ने, पर आपां भुल गए। लो पढ़ियो बचन गुरमुखो, 100 उलामे दिन है कि राती मिलन सहंस, सिफत सलाहन छड्ड कै करंगी लगा हंस। ओ बंदिया तैनू भेजिया सी गुणां दी सांझ करन वास्ते, तैनू भेजिया संसार ते परमात्मा दा भजन करन वास्ते, तैनू भेजिया सेवा करके संसार नूं सोहना बनाउण वास्ते। पर जे तू गुणां दी सांझ नहीं करदा, फिर सच करके जानी दिन रात दे उलामे 100 मिलदे ने, भगती तो हीणिया मना। दिन रात दे उलामे 100 मिलदे ने, भगती तो हीणिया मना। दिन रात दे मिलदे ने, भगती तो हीणिया मना। दिन रात दे उलामे 100 मिलदे ने, दिन रात दे उलामे 100 मिलदे ने। दिन रात दे उलामे 100 मिलदे ने,
ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਹੀਣਿਆ ਮਨਾ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇ ਉਲਾਮੇ 100 ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਹੀਣਿਆ ਮਨਾ। ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਹੀਣਿਆ ਮਨਾ। सौ ओलामे दिन है के राती मिलन सहंस, सिफत सलाहन छड़ के कहंदे सिफत सलाहन छड़ के, जे रब दी भगती छड़ के कल्ले शरीरक सुखां दी खातर तुरांगे ना गुरमुखो, फिर तां उलांभे ही मिलदे आ। आखो सतनाम। जे देखना भी किनू की मिले, लो पढ़ लो फिर बाबर दी जिंदगी, पढ़ियो जहांगीर दा जीवन, की भला कीता इन्हां ने, राजे सी हालांकि। पढ़ के वेख्यो औरंगजेब दा जीवन, दुनिया दा बादशाह है। जहांगीर वाहिगुरू औरंगजेब नूं आलमगीर कहा जांदा सी, जिहड़ा सब तो वड्डा बादशाह। राज भाग की खातर 3 सके भरावां दा कतल किया, प्यो नूं भुखा तेहा रख के मारता जेल विच शाहजहान नूं। गुरमुख प्यारिओ, इत्थों तक हिंदुआं दे भी कहंदा मंदिर ढा के मसीतां बनाओ। गुरु तेग बहादुर महाराज गए समझाउण भी जिवें तैनूं अपना धर्म प्यारा है, उवें सब नूं ही अपना धर्म प्यारा है भाई, इन्हां नूं अपने धर्म च रहण दे। कहंदा महापुरुषो, हिंदू ते मुसलमान धर्म ने 2, मैं इन्हां दोवां नूं एक बनाउणा चाहुंदा मुसलमान। पर गुरु तेग बहादुर जी कहंदे तेरा तरीका गलत है। आखो सतनाम। धर्म वाधे ने प्यार नाल, ते जिहड़ा तूं जुल्म करन ते तुरिया, ये तां कोई भी धर्म नहीं कहंदा। कहंदा जी फिर ऐं करो, ये हिंदू कहंदे ने कि गुरु तेग बहादुर जी नूं मुसलमान बना लो, असीं सारे आपे ही बन जांगे। कहंदा तुसीं मुसलमान हो जाओ। सतगुरु तेग बहादुर साहब कहंदे ये भी नहीं हो सकदा। आखो सतनाम। कहंदा जी मैं 2 धर्मां तो एक तां बना के ही रहना है। महाराज कहंदे तूं तां 2 धर्मां तो एक बनाउणा चाहुंदा है, मैनूं तीजे दे भी हुंदे दिसण त्यारे। गुरमुखो प्यारिओ, देखो मन्निया नहीं, सगों गुरु तेग बहादुर नूं ही शहीद करता। आखो सतनाम। पर सामने है अपने मिसाल। अज जाओ दिल्ली, गुरु तेग बहादुर महाराज जी नूं तां जिथे शहीद कीता उत्थे तां दुनिया सीस झुकाउंदी आ के, मल्लो मल्ली सिर झुकदा है। पर औरंगजेब बादशाह सी, दसो उहदी कोई याद हैगी उत्थे गुरमुखो? कोई चंगा समझदा है? जदों हजूर साहब नूं जाने आ, औरंगाबाद आउंदा रस्ते दे विच, उत्थे समाधि जरूर बनी है औरंगजेब दी, पर उत्थे भी कोई सत्कार नहीं करदा। एक महात्मा दे मैं बचन सुने, कहंदे असीं गए उत्थे भी चलो देख के तां आईए, एडा वड्डा दुनिया दा बादशाह सी, कोई याद हैगी? कहंदे उत्थे एक भाई कहंदा मैनूं आना दो, आने दे दो। कहंदे असीं आख्या भी की करेंगा? वो कहंदा जी औरंगजेब दी मड़ी ते दीवा जगाउण वास्ते तेल पाउणा है। आखो सतनाम। एडा वड्डा दुनिया दा बादशाह, पर दीवे च तेल पाउण वास्ते भी टका टका मंगिया जांदा है। गुरमुख प्यारिओ, हुण भाव की है भी बादशाह जरूर सी, पर वो चंगा कर्म भले दा नहीं कर सकिया। आखो सतनाम। गल ये नहीं भी तेरे कोले किन्नी जमीन जायदाद है, गल ये नहीं भी कोठी किड्डी कवड्डी पाई है, कारां हैगियां जां नहीं, ये नहीं वेख्या जांदा। तू दिहाड़ी करदा है, झोंपड़ी च रहिना है,
ਸੁਖੀ ਆ ਜਾਂ ਦੁਖੀ ਆ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ, ਸਦਾ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਵੇ ਭਾਈ ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਛੱਡੋ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੰਦਾ ਭਲੀ ਕਿਸੈ ਕੀ ਨਾਹੀ, ਮਨਮੁਖ ਮੁਗਧ ਕਰਨ, ਮੋਹ ਕਾਲੇ ਤਿਨ ਨਿੰਦਕਾਂ ਨਰਕੇ ਘੋਰ ਪਵਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੰਦਿਆ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਹੋ ਗਏ, ਨਿੰਦਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲੇ, ਆਖਰਕਾਰ ਉਹ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਜੇ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਰਹਿ ਜੇ, ਥਾਂ ਰਹਿ ਜੇ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਰਗਹਿ ਬੈਸਣ ਪਾਈ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਵੇਖਦਾ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਰਹਿ ਜੇ, ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਲਓ ਪੜ੍ਹਿਓ ਬਚਨ। ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਬੰਦਿਆ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਬੰਦਿਆ। ਜੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰਨਾ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਬੰਦਿਆ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਬੰਦਿਆ। ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਬੰਦਿਆ। ਜੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰਨਾ, ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੜਨਾ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਬੰਦਿਆ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਬੰਦਿਆ। ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਬੰਦਿਆ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰਨਾ, ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੜਨਾ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਐਡੇ ਐਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਏ ਪਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਲਾਹਣਤਾਂ ਹੀ ਪਾਉਂਦਾ ਵੀ ਲੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਿੰਨਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਦਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਵੇਖ ਲਓ। 15 ਭਗਤ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਹ ਵੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ, ਇਸਲਾਮ ਮਤ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਪਰ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਲਓ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਪਿਆਰਿਓ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਗਤ ਸੀ ਨਾ, ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਭਗਤ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਏ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਹਰੇਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਗੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰਿਆ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਗਏ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਹਾਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਘਰ 'ਚ ਗਰੀਬੀ, ਉਤੋਂ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ। ਨਾ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
सैन जी होए नाई वीरां विचों, इन्हां नूं भी रब दा नाम जपण दी मनाही सी गुरमुखो। हालांकि बाबा फरीद जी हो गए, बाबा धन्ना जी महापुरख भगत धन्ना जी, इन्हां वास्ते कोई मनाही नहीं सी, ये तो कर सकते सी भजन, पर जिन्हां नूं मनाही सी धर्म करन दी वो भी गुरमुखो भजन करन लग गए। तो सतगुरु गुरु अर्जन देव जी ने अपने बराबर दर्जा दिता है। आखो सतनाम। 15 भगत होए ने सारे। रविदास जी भगत बारे आप जी सुनते रहने हो, भगत धन्ना जी बारे तुसी सुनते ही रहने हो, भगत नामदेव जी बारे सुनते रहने हो, भगत बेणी जी बारे सुनते रहने हो, पर कुछ भगत वो ने जिन्हां बारे सानू बहुत घट पता है गुरमुखो। अज जिक्र जिहड़ा चलिया है, एक वो ने जिन्हां दी जमीनां जायदादा राज भाग बड़ा सी, पर कोई नहीं याद करता, कोई सिर नहीं झुकाउंदा। पर कुछ वो भी ने जिन्हां दे घरां विच भावें गरीबी सी, पर उन्हां दे कोलों जिहड़े बचन उचारे गए वो हरेक पढ़दा। आखो सतनाम। हुण रविदास महाराज जी ने बाणी उचारी, जो दिन आवे सो दिन जाही, करना कूच रहन थिर नाई। हरेक दे भोग ते तकरीबन पढ़े जाते हैं शब्द गुरमुखो। किवें आपां कह देंगे भी वो पिछे रह गए, तो फिर भाव की है, इस युग में शोभा नाम की, बिन नावै शोभ ना होए। नाम तो बिना साडी कदर नहीं पैनी भाई। लो हुण जिक्र जिहड़ा करना है, उत्तर प्रदेश पिंड कोकरी लखनऊ दे विच गुरमुखो एक परिवार रहिंदा है, श्री दातार जी ते दातार जी दे घर वाली माता देवकी। आखो सतनाम। ये मुसलमान सन गुरमुखो, मुसलमान सी। अपनी 10 नौहां दी किरत करके परिवार नूं पालदे है। ते दातार जी ने अरदासां करनियां, हे अल्लाह किरपा कर साडे भी घर विच पुत्र धी हो जे। तां उस अल्लाह नूं पूजदे सी, क्योंकि मुसलमान सी। परमात्मा दे दर ते पुकार सुनी गई प्यारिओ। 1480 ईस्वी दे विच दातार जी दे घर माता देवकी दी पावन कुखों एक बच्चे दा जन्म होया, जिहदा नाम उन्हां ने भीखन रखिया। आखो सतनाम। भगत भीखन जी गुरमुख प्यारिओ, वो बहुत वड्डे भगत होए, है मुसलमान। देखो ये बेनती मैं तां करदा कि ये गुरु नानक दा घर है जिथे आपां बैठे आ। इत्थे अमीर गरीब जात गोत धर्म नहीं वेखिया जांदा, इत्थे वेखिया जांदा है तू जिंदगी विच कीता की है। आखो सतनाम। भगत भीखन जी बचपन तो ही उन्हां दी बिरती धार्मिक गुरमुखो, हर वेले अल्लाह नूं याद करना, साधुआं फकीरां दी संगत करनी। माँ प्यो ने बहुत जोर लाया ये पढ़ जे, इहदा विआह शादी करिए, परिवार वधे। पर ये कहंदे भी ना तां असीं परिवार वधाउणा है, ना असीं संसारी बंधनां च पैणा है, असीं तां सिर्फ परमात्मा दा भजन करना है। आखो सतनाम। गुरमुख प्यारिओ देखो वो जिहड़ा समा सी ना भगती काल दा समा सी। गुरु नानक साहब भी उदों ही होए ने, 10-11 साल दा फर्क सी भगत भीखन जी दे जन्म दा ते गुरु नानक साहब जी दे आगमन पुरब दा। 1469 दे विच गुरु नानक दे महाराज संसार विच आए ने, ते भगत भीखन जी 1480 दे विच इस संसार विच आए। उदों समा सी भगत कबीर जी वर्गे, भगत रविदास जी वर्गे, भगत नामदेव जी वर्गे इस संसार नूं तारदे फिरदे सी। आखो सतनाम। इन्हां सारियां दा मेल गुरमुख प्यारिओ गुरु अर्जन देव महाराज ने एक करता, वितकरा नहीं रखिया। हुण भगत भीखन जी दा मेल धन गुरु नानक साहब नाल भी होया गुरमुखो। बचपन तो बिरती धार्मिक साधुआं दी संगत करनी, परमात्मा दा भजन करना। जदों होई 10-11 साल दी उम्र, उदों गुरमुख प्यारिओ सैयद मीर इब्राहिम नूं इन्हां ने अपना गुरु मान लिया। सैयद
मीर इब्राहिम, क्योंकि मुसलमान सीगे। मन विच ख्याल आया कि गुरु बिना गत नहीं, शाह बिना पत नहीं। आम ही कहने आ ना ਆਪਾਂ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਵਤਾਂ। ਤੇ गुरु ग्रंथ साहब भी ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ कुंभे बद्धा जल रहै, जल बिन कुंभ ना होए। ज्ञान का बद्धा मन रहै, गुर बिन ज्ञान ना होए। ਕਹਿੰਦੇ गुरु तो बिना ज्ञान नहीं हुंदा, गुरु धारण करना पैना। ਤੇ ਜਦੋਂ सैयद मीर इब्राहिम जी ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਦਿਓ, ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਪੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਹੂੰ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਸਾਰੀ ਧੰਦਾ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈ, ਪਰ ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਨੀਤ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭੀਖਣ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੇ ਭਗਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਭੀਖਣ ਜੀ ਨੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਮੀਰ ਇਬਰਾਹਿਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਸ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਦੱਸਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕਮਾਉਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਤਾ, ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਹੋ ਫਕੀਰ ਓਏ ਮਨਾ। ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਹੋ ਫਕੀਰ ਓਏ ਮਨਾ। ਫਕੀਰ ਓਏ ਹਾਂ, ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਹੋ। ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਹੋ ਫਕੀਰ ਓਏ ਮਨਾ। ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਹੋ ਫਕੀਰ ਓਏ ਮਨਾ। ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ, ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਫਕੀਰ ਬਣ, ਭਜਨ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਜਪਦੇ। ਤੇ ਖਿਆਲ ਐਸਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਹਾਤਮਾ ਮਿਲਦੇ ਨਾ, ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਰਾਮ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਗੁਰਮੁਖ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਕੱਲਾ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਜਪਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆ ਜੇ ਵਿਤਕਰਾ ਸਮਝ ਲਓ ਰੱਬ ਦੇ ਭਗਤ ਨਹੀਂ, ਵਿਖਾਵਾ ਹੀ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਅੱਜ ਵੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਮ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਜਪਣਾ। ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿੱਤਾ ਪਿਆਰਿਓ। ਲੋਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆਏ ਨੇ, ਰਾਗ ਸੋਰਠ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਭੀਖਣ ਜੀ ਕੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ 659 ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਗਤ ਭੀਖਣ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਹੈ
जे सच्चा गुरु बख्शिश करे किरपा करे आखो सतनाम। इन्हां ने समझाया है, की समझाया है? कहंदे रब दा भजन करो, पर भजन करन दा भी टाइम है गुरमुखो। अपने वाला काम नहीं। बचपन तो लंघ गया खेडां च, जवानी लंघी होर संसार दे धंधे करदे आ, ते अंत समय आके कहने आ भी हुण सानू रब मिल जे। इत्थे ही बेनती करदे आ, जिउंदे जी जुड़ो प्यारिओ। धन गुरु ग्रंथ साहिब हाजर नाजर प्रतख गुरु साहब बैठे ने। जिउंदे जी भी जुड़ो, किते मरण तो बाद ही ना अरदासां जोगे रह जाइए भी महाराज चरनां च थां देई। ये औखा बड़ा काम आ। जेड़े भगत जन रब नूं भा गए, ये बचपन तो जुड़े सी। बचपन जवानी बुढ़ेपा जिन्ना समा रहे ना संसार विचों धर्म दे लेखे लाया। ते यही गल सानू भगत भीखन जी समझाउंदे ने। कहंदे जदों होएगा बजुर्ग उदों जपना बड़ा औखा है। नैनो नीर बहै तन खीना, भये केस दुधवानी, रुद्धा कंठ शब्द नहीं उचरै, अब क्या कर है प्राणी। ख्याल ना समझियो, मैं भी विचों ही हाँ, कल्ले थानों नहीं कहंदे। अपना की काम है, बचपन जवानी च तां आपां याद नहीं करते। जदों हुंदा बुढ़ेपा उदों कहने आ भी हुण रब दे भगत बन जाइए। मैं कहना चलो शुक्र है उदों भी बन जाओ। अपने धर्म विच गुरु अमरदास तीसरे सतगुरु होए ने ना, ये 72 साल की उम्र विच जाके पता लग्या सी भी मना एवें ही जिंदगी लंघाती, सच्चा गुरु तां इत्थे है आखो सतनाम। उदों जुड़ गए सी तां भी गल बन गई। जे बजुर्ग हो के भी जुड़ जो चंगा है, पर बजुर्गी च जुड़ना औखा है। भगत भीखन जी कहंदे अखां दे विचों पानी किरना शुरू हो गया, नैनो नीर बहै। बजुर्गी अवस्था ऐसी है, अखां चों पानी किरना शुरू हो गया। जेड़ा शरीर है कहंदे ये कमज़ोर पै गया। नैनो नीर बहै तन खीना, कहंदे तन है जेड़ा शरीर ये भी कमज़ोरा पै गया। इंद्रियां दा नसां दा बल घट गया। भये केस दुधवानी, कहंदे जेड़े केस सी वाल सी ये भी कालियां तो चिट्टे हो गए आखो सतनाम। कहंदे ने रुद्धा कंठ शब्द नहीं उचरै, जेड़ा मेरा गला सी ये भी रुकन लग गया। कहंदे बजुर्गी विच जाके ना देखियो, बजुर्ग बोलना चाहुंदे हुंदे है पर गल विच बलगम फस जाती है, फिर बोले ही नहीं जाता, कईयां तो अड़क अड़क बोलते हैं। कहंदे रुद्धा कंठ शब्द नहीं उचरै, अब क्या कर है प्राणी। कहंदे हुण तां अवस्था ऐसी बन गई, ना तां चंगू बोलिया ही जाता है, अखां चों पानी किरदा की पढ़ेगा। वाल केस कालियां तो चिट्टे हो गए, हुण शरीर बल नहीं रहा, कोई काम भी सेवा भी नहीं हो रही आखो सतनाम। फिर परमात्मा दा सहारा फिर भी कहंदे तकना है। इन्हां ने बेनती कीती राम राये होहे वैद बनवारी। कहंदे हे परमात्मा अवस्था ऐसी आ गई, हुण तां मेरा तू ही राखा है आखो सतनाम। गल अपने वाली होई है गुरमुखो। कहंदे ने ना जदों वरे होए 10 कदी रो कदी हस। बचपन का समा बच्चा कदे रो पिया कदे हस पिया, भुल चुक भी करे आपां कहने आ चलो बच्चा है। जदों वरे होए 10 कदी रो कदी हस, जदों वरे होए 20 चढ़िया जोवन सी की। 20वें साल तक जवानी शुरू हुंदी है, बंदा कहंदा मैं ही आ जो हाँ बस, पर हुंदा की है 20 साल तो बाद अक्सर ही आपां देखदे आ 25-26 साल तक हुण विआह बच्चियां दे हो ही जांदे आ, ते 30 साल तक जांदियां जांदियां 2-4 जवाक भी हो जाते हैं। गुरमुख कवि लिखदा है, कहंदा जदों वरे होए 20 चढ़िया जोबन सिक्की, जदों वरे होए 30 हो गए 2-4 जी, जदों वरे होए 40 पै गई मोढियां ते कबीलदारी दी पंजाली। 30 साल तक ही आ, मार लो जिहड़ियां मल्लां बजदियां। गुरु ग्रंथ साहिब कहंदे 40 सी पुर होए, 40 साल तक जांदियां जांदियां जवानी समझ ला तेरी पूरी। उदों बाद की हुंदा है, फिर बुढ़ेपा शुरू हुंदा है आखो सतनाम। 40 साल तक जांदियां जांदियां फिक्र पै जांदा मैं पुत्तां दा की करां धीआं दा की करां।
कबीलदारी दी पंजाली गल पै जांदी है। ते जदों वरे होए 50 घर दे कहंदे जिथों मर्जी कमा के लिया। फिर माँ बाप भी कहंदे आ भी हुण न्याणा थोड़ी रह गया तूं, जिथों मर्जी कमा भाई अपना परिवार पाल। हुंदा है ना इसे तरह। कहंदे जदों वरे होए 60 दोहतियां दा पोतियां दा हो गया इकट्ठ। 60 साल तक जांदियां कदे दोहते भजदे आ, कदे पोतियां वल्ली भजदे आ। गुरमुखो मोह नहीं छड्डदा खैड़ा साडा। जदों वरे होए 60 दोहतियां दा पोतियां दा हो गया इकट्ठ। ते जदों वरे होए 70 खोटा पैंदा फिर बंदे दा नछत्तर। आखो सतनाम। गुरु ग्रंथ साहिब विच लिखिया है, महाराज कहंदे 40 सीपुर होए 85 पग खिसै 60 के बुढ़ेपा आवे 70 का मतहीन 80 का व्यवहार ना पावे। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ 70 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਫਿਰ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਕੰਮ ਛੱਡਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਇਹ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਘਰ ਦੇ ਫਿਰ ਮੱਤਮਾਰੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਿੱਤ ਹੈ, ਸਮਝੀਏ ਨਾ ਸਮਝੀਏ ਭਾਈ, ਹੁੰਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਆ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਮੱਤਮਾਰੀ ਵਾਲੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹਿ ਜਾ ਟਿੱਕੇ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵਰੇ ਹੋਏ 70 ਖੋਟਾ ਪੈਂਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਛੱਤਰ। ਜਦੋਂ ਵਰੇ ਹੋਏ 80 ਮੰਗਦਾ ਦੁੱਧ ਪਰ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। 80 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਬੱਚੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਰਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਭਗਤ ਭੀਖਨ ਜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੈਨੋ ਨੀਰ ਬਹਿ ਤਨ ਖੀਨਾ ਭਏ ਕੇਸ ਦੁੱਧਵਾਨੀ ਰੁੱਧਾ ਕੰਠ शब्द नहीं उचरै अब क्या कर है परानी। मेरे राम राय होहे वैद बनवारी अपने संत है लेहो उबारी। हे परमात्मा हुण तां तेरा ही आसरा है, हुण तां तेरा ही आसरा है। तुसीं ही सच्चे वैद हो, तुसीं ही इस जगत दे माली हो, हकीम हो। किरपा करो साडा पार उतारा करो। आखो सतनाम। ते गुरबाणी विच भी लिखिया बारू भीत बनाई रच पच रहत नहीं दिन चार तैसे ही ये सुख माया के उर्जियो कहाँ गवार। कहंदे तां रेते दी कंध है जिहदा मान करी फिरदा है, कादे विच उलझिया पिया अणजान बन के कुछ सोच। आखो सतनाम। यही गल सतगुरु जी समझाउंदे ने। भगत भीखन जी कहंदे उदों फिर बंदा अरदासां करदा सच्चे पातशाह मेरा रख लई मान निमाणेंदा, रख लई मान निमाणेंदा। हुण तेरा ही परवासा मेरा रख लई मान निमाणेंदा, रख लई मान निमाणेंदा। मान निमाणेंदा मेरा रख लई। जे मिलना भगवान गरीबी तार मना, जे मिलना भगवान गरीबी तार मना। जे कहंदे भगवान नूं परमात्मा नूं मिलना फिर हौमै छड्ड दे, शुरू तो ही गरीबी धार लै। भगत भीखन जी कहंदे बुढ़ेपे विच जाके भी हाल यही होना है। 70 का मतहीन 80 का व्यवहार ना भावै। 80 साल तक जांदियां अवस्था पता की हुंदी है? कहंदे माथे पीर शरीर जलन है करक करेजे माही। कहंदे मत्थे दे विच पीड़, सिर दुखदा रहिंदा है, शरीर भी बलदा रहिंदा है, अंदरों अंदर ही सड़दे रहंदे आ। कई बच्चों ते औखे होई जाणगे भी असीं आह कीता जी, ये हुण आखे नहीं लगदे, ओह नहीं करदे। हुंदा है ना किसे नूं परिवार दी चिंता, अंत समय तक जिहड़ा काम धंधा है ना वासना है ये नहीं मरदी। आखो सतनाम।
जे मुकी है किसी दी तां दस दो गुरमुखो। किसी ना किसी गल दी चिंता हुंदी होई है। भगत भीखन जी कहंदे मत्थे दे विच पीड़ है, शरीर दे विच भी जलन है, ते दिल दे विच दिनों दिन दर्द वधदा ही जा रहा है। ऐसी वेदन उपज खरी भई वाका औखद नाही। ऐसी अवस्था बन जाती है जिहदा इलाज ही कोई नहीं। आखो सतनाम। बुखार चढ़ जे उहदी तां दवाई हैगी आ, दर्द हुंदा दवाई हैगी आ शरीर दी। पर ये जिहड़ी पीड़ा है ना गुरमुख प्यारिओ भगत भीखन जी दी, ये मन की पीड़ा है। जिन्हां नूं इच्छा सी असीं परमात्मा दा रूप होइए, परमात्मा दे दर्शन होण, वो अपनी पीड़ा बयान करते हैं। मैं शुरू तो बेनती एक कीती है, जिहड़े पहिलां दे आए उन्हां नूं चेता होना है। शरीर दे रोग बंदा दूजिआं नूं दसदा है, मैनूं रोग लग गया, भुख नहीं लगदी। पर मन दे रोगी बहुते ने, वो दस के राजी नहीं। आखो सतनाम। कोई दसदा भी हुण मेरा नितनेम टुट गया जां मेरा पाठ करन नूं जी नहीं करदा, कोई विरला होना गुरमुखो। तां ही महाराज नूं कहना पिया, कहंदे विरले विरले आ भाई धर्म बंदे। तां इत्थे भगत भीखन जी कहंदे ने हर का नाम अमृत जल निर्मल, इहो औखद जग सारा। आपां नूं समझाया है, कहंदे जेड़ा समा लंघ गया हुण हो गया बजुर्ग, हुण संसार दीआं चिंतावां छड्ड दे, अजे भी तेरे कोले टाइम है। परमात्मा दा भजन करया कर। हर का नाम अमृत जल निर्मल, कहंदे परमात्मा दा नाम है ये अमृत है, यही मौत तो बचाउंदा है, एडा निर्मल है, सारे रोगां दी दवाई है रब दा नाम। आखो सतनाम। औखद तो भाव हुंदा दवाई, इहो औखद जग सारा, कहंदे सारे संसार वास्ते रोगां दी दवाई है परमात्मा दा नाम। गुर प्रसाद कहे जन भीखन, पावो मोख द्वारा। भगत भीखन जी कहंदे गुरु दी किरपा नाल मैं कह रहा कि मुक्ति मिल जूगी संसारी बंधना तो, बिंगियां टेढ़ियां जूना तो। भाई परमात्मा दा भजन कर लिया करो। आखो सतनाम। जदों इस तरह मन निर्मल हो जे ना, मन विचों सतगुर किरपा कर देना, विचों मार कड्डियां बुराइयां, गुरां ने सिर ते हथ रख के, विचों मार कड्डियां बुराइयां, गुरां ने सिर ते हथ रख के। गुरां ने सिर ते विचों मार कड्डियां बुराइयां, गुरां ने सिर ते हथ रख के। विचों मार कड्डियां बुराइयां, गुरां ने सिर ते हथ रख के, विचों मार कड्डियां बुराइयां, गुरां ने सिर ते हथ रख के। विचों मार कड्डियां गुरां ने सिर ते हथ रख के। जदों गुरु किरपा करे फिर मन चों बुराइयां निकलदियां, तां जाके साडा भला हुंदा है। आखो सतनाम। लो भगत भीखन जी का बचन चलता है। एक दूजा शब्द भी है गुरु ग्रंथ साहिब दे विच, कहंदे ने ऐसा नाम रतन निर्मोलक पुण्य पदार्थ पाया। आ जिहड़ा मनुखा शरीर सानू दिता है, ये मिलिया सेवा सिमरन वास्ते। इहदे नाल नाल नाम की दात मिल जे, अमृत की दात मिल जे, ये तां भाई दातां तां मिलदियां जे बहुते पुण्य होण। आखो सतनाम। जिन्हां दे दरगाह विचों पुण्य खत्म हो जाण,
महापुरुष कहते हुंदे परमात्मा कोई ना कोई फिर उन्हां दा अंग भंग करदा है गुरमुख, दुखी हुंदे रहने आ। ते जे शरीर भी पूरा है, सुख सहूलतां भी हैगियां, उत्तों रब दे नाम दी तैनूं दात मिल जे, अमृत मिल जे, फिर ऐ समझ ली भी बहुत वड्डे चंगे कर्म ने। आखो सतनाम। ते नाम दी दात मिल तां जांदी है, ज्ञान मिलता जाता है, पर फिर रखना बड़ा औखा है गुरमुख। कहते ने ऐसा नाम रतन निर्मोलक, पुण्य पदार्थ पाया, अनक जतन कर हिरदै राखिया, रतन ना छपै छुपाया। कहते नाम रूपी रतन है ना जेड़ा, इनू छपाउणा है गुरमुखो। भोजन भजन खजाना, नारी चारे पड़दे दे अधिकारी। सियाणियां दा कहना है गुरमुखो, सियाणियां दा कहना है। ते नाम भी भगती भी छुपाउणी चाहिदी है। जिमींदार बैठे हो, तुसीं फसल बीजदे हो ना, जे कणक बीजी होवे ते दाणे नंगे रह जाण, वो हरे नहीं हुंदे गुरमुखो, जां फिर जानवर चुग लैंदे आ। वो कणक बीज के भी उत्ते थोड़ी थोड़ी मिट्टी पाउणी पैंदी आ, तां हरे हुंदे ने। भगती दा बीज भी रौला ना पाओ। कई अजकल बड़ा समा चलिया, कहंदे ने जी बस सानू ही पता है, असीं ही रब हाँ। कई तो रब तो भी मुकर गए गुरमुखो, दुख तो मनायो ना माफ़ी मंग ला। कई कहंदे रब भी नहीं हैगा, जो कुछ कर सकदा बंदा ही कर सकदा, रब की कोई मर्जी नहीं गुरमुखो। ते जे ऐ बंदा कुछ कर सकदा हुंदा, मेरे ख्याल तो अध तो वध दुनिया नूं आपां जिउण ही ना दिंदे गुरमुखो। बनदी किसे नाल नहीं साडी तां। हुक्म है रब दा प्यारिओ, ते परमात्मा दी भगती करो, अनकांत चित्त एकाग्र चित्त बह के भगती करो। कहंदे थोड़ी भी जय जयकार हो, क्योंकि नाम जिन्हां ने भी जपिया वो तां संसार विच प्रगट हो गए। आखो सतनाम। कहंदे ने हर गुण कहते कहन ना जाई, परमात्मा दे गुण ने है तां वड्डे, पूरे बयान तां नहीं कीते जा सकदे। ज्यों गूंगे मठियाई खाई, जैसे गूंगे की मठियाई। कहंदे जिवें गूंगे नूं मठियाई खवा दो, उन्हूं पुछो भी किन्ना करास आया, वो हुण दस तां नहीं सकदा, पर शरीर की हलचल तो पता लगू भी खुश है बंदा। इसे तरह रब का नाम जिन्हां नूं प्राप्त हो गया गुरमुखो, वो दस ही नहीं सके भी किन्ना क आनंद आया। आखो सतनाम। रसना रमत सुनत सुख श्रवना, चित चेते सुख होई। कहंदे उस परमात्मा नूं मेरी जीभा उचारदी है, कन सुनते ने, ते मैं अपने चित चेते विच ओहदा सिमरन करना। कहो भीखन दोए नैन संतोखे, जह देखा तह सोई। कहंदे हुण मैं दुनियादारी छड्डती, होरां नूं देखण दी बजाए अपने नेत्र बंद कर ले। संतोखे तो भाव पता की है, जिवें आपां नहीं कहंदे भी शाम का टाइम हो गया जी गुरु ग्रंथ साहिब नूं संतोख दिओ, भाव दोवें जिल्दां लिया के इकट्ठियां कर दे दियां, पलकां भी जुड़ जांदियां। इसे तरह उही शब्द वरतिया इत्थे। कहंदे नैन हो गए बंद, पलकां हो गईयां बंद, हुण बाहरी देखना छड्ड के मैं अंतर आत्मे परमेश्वर नूं आराधदा। आखो सतनाम। आ अवस्था बनाउणी पैणी है गुरमुखो। मर्जी तां तुहाडी है, करना की है। मैं भी विचों ही हाँ। आपां जिन्ना चिर दूजिआं नूं देखांगे उन्ना चिर गल नहीं बननी। अजकल हालात यही है, दूजे बारे बहुत पता, अपने आप बारे कुछ नहीं पता गुरमुखो। दूजे की निंदा बथेरी कर लेने आ, आपदे असीं गुण भी नहीं देखते। महाराज तां कहंदे ने करन ना सुनै काहू की निंदा। कहंदे कन निंदिया सुन ना, तू उस्तत कर गुण लै सब तो। पर अज दा सिख कहंदा भी मैं किसी की उस्तत करनी नहीं, मैं तो करनी ही निंदिया गुरमुखो। पता नहीं की कलयुग की मार है, प्रचारक दूजिआं दीआं घाटां कढ कढ के नेड़े लिआउंदे आ गुरमुखो। बेनती है ओह जिहा तो पासा कर लिया करो, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब कहंदे ने सांझ करीजै गुण है केरी, छोड़ अवगुण चली है। कहंदे गुणां दी सांझ कर, सेवा कर, जे गुरु की खुशी लैनी है। जे तू गुरु दे वचन सुन ले पर मन्ने ना, फिर तेरा भला होना बहुत औखा है। आखो सतनाम। ठीक है, जिन्नी मालक ने किरपा अपने ते कीती, घर बार जमीन जायदादां पैसा टका जिन्ना भी जोड़िया जांदा जोड़ो, पर कदर नहीं पैनी जे दूजियां दी सेवा ना कर सके। आखो सतनाम। महाराज कहंदे विच दुनिया सेव कमाई है,
तां दरगह बैसण पाई है। सो भाई एक दो बेनतियां करके आपां समाप्ति वल वधीए। बेनतियां ये है भी एक तां वध तो वध रुख लाओ भाई, ये साडे वातावरण नूं शुद्ध रखदे है, जरूरी ने। जे किसे दे भले नहीं ला सकदा तां जदों नूं संस्कार होना घट्टो घट्ट आपदे एक जोगी लकड़ तां पैदा करनी चाहिदी है। गुरमुख किसे ते बोझ ना बणीए आपां, वध तो वध रुख लाओ। दूजी बेनती है, धीआं ने चाहे पुੱਤ ने, इन्हां नूं विद्या जरूर पढ़ाओ, क्योंकि विद्या मनुख दा तीजा नेत्र है। ठीक है, रब किरपा कर दे तां रविदास जी महाराज, कबीर जी महाराज वो बिना पढ़े यह जा कुछ ले गए जिहदी हजे तक खोज होई जाती है, वो तो वड्डी गल है। पर जिन्ना कापां ना फर्ज बनता है बच्चों नूं विद्या पढ़ाओ। समाज है जिहड़ा ये नशियां दी दलदल विच ग्रस्त हुंदा जा रहा है भाई, इहनूं बचाओ। आखो सतनाम। जिमें भी हो सकता है अपने परिवारां दा ख्याल रखो, नशे पत्तियां तो रहत हो के। कोई लोड़वंद गरीब है, जिन्नी को हो सके उहदी मदद भाई जरूर करो। चौथी गल, निंदिया चुगली छड्ड दिओ। जिन्ना टाइम किसी दे विरोध करन च आपां लाउने आ, उन्ना चिर गुरबाणी पढ़ लो, इतिहास पढ़ लो, कोई होर पढ़ाई कर लो। गुरमुखो पढ़ना लिखना संसार भुलदा जांदा है, नकलां ते जोर है। गुरमुखो इदां नहीं गल बननी भाई। जे चाहुंदे आ साडा संसार विच ना रह जे, ठीक है, ना कोई धीआं पुत्तां परिवार करके नहीं हुंदा, ये तैनूं देखिया जाना भी तैं जिंदगी च आके की कीता है। वध तो वध सिमरन करो, परमात्मा दा नाम जपो भाई, ये मुख कारज है, ये तो ना टुटो। जिहड़े सिख परिवारां नाल संबंध तो जिउंदे जिउंदे अमृत छक के गुरु वाले बनो। ते जे चाहुंदे हो भी पक्का मन गुरु नाल जुड़े तां सब तो पहला गुरु ग्रंथ साहिब बारे जान लो भी ये चीज़ की है। गुरमुखो बिना जाने पछाणे तां मुंडे कुड़ी दा विआह नहीं करदे आपां। गुरमुख ते गुरु ग्रंथ साहिब बारे जे जानना, बाणी चाहे घट पढ़ लो पर जिन्नी क पढ़ो ਉਹਦਾ पता होवे भी ये कहंदी की है। आखो सतनाम। सो इसे करके आपां भगत भीखन जी की अज विचार कीती है, क्योंकि दास दा सुभाਅ है। हर प्रोग्राम ते हर भगत की नवीं नवीं विचार करी दी है, नाले तां साडे ज्ञान च वाधा हुंदा है, नाले भाई सुनने वालियां नूं पता लग जाता है। सो निंदिया चुगली छड्ड के भाई इधर नूं आपां ध्यान दईए। जे शांति चाहुंदे हो, अगे मर्जी तुहाडी है, करना की है। असी तो चाहुंदे आ सारे चंगे इंसान बन के सोहना समाज आपां सिरजीए। लो आईयां होईयां सारियां संगतां दा धन्नवाद।